السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے اکابرین اور اساتذہ کا ایک معمول ہے کہ جب بھی نئی کتاب پڑھا کرتے تھے یا شروع کرتے تھے تو ایک دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا اور اس کی تکمیل کرنا آسان فرما دیتے تھے۔ تو اس دعا کو میں دہراتا ہوں، آپ بھی ساتھ دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ جی، ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ تو ہمارا جو یہ قرآن پاک کے سیکھنے کا ایک عمل ہے، اور یہ جو ہمارے سبق کا انداز ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم نے کہا کہ باقی تمام طریقہ ہے تدریس ہے ان سے مختلف ہے، وہ جس طرح شروع کی کلاس میں آپ سے بات کی تھی کہ اس میں ہم اشاروں کے ذریعے اپنے اس ترجمے کو، اپنی بات کو ہم کرتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، 78,000، اور اگر ہم ان کے مکرر الفاظ کو ایک دفعہ کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل 17,000 الفاظ رہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے مختلف قسم کے کئی الفاظ نکلتے ہیں، افعال کی مختلف اقسام ہیں، اسماء کی مختلف اقسام ہیں، ان سب کا مصدر ایک ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم ان کو بھی کاؤنٹ کریں، مثلا یعلم، اعلم، تعلم، نعلم، اگر ہم ان سب کو بھی ایک کاؤنٹ کر کے ایک شمار کریں تو صرف 4,500 الفاض رہ جاتے ہیں، جن سے نکلنے والے الفاظ سے پورا قرآن پاک کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ضمیر منفصل ہے۔ ضمیر منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں، اس پروناؤن کو کہتے ہیں جو کسی لفظ سے اٹیچ ہو کے نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیشہ کسی بھی جگہ پر اپنی ایک علیحدہ شکل میں موجود ہوتا ہے، یہ کسی لفظ، کسی اسم، کسی فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا۔ اور ضمیر منفصل اکثر اسماء یا افعال کے شروع میں آتا ہے، اس کے بعد میں نہیں آتا۔ تو ہم یہاں پہ شروع کریں گے ضمیر منفصل یعنی سیپریٹڈ پروناؤنس۔ اب یہاں ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیں کہ 8 اشارے ہیں۔ مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ ہے، مؤنث کے لیے الٹا ہاتھ، واحد کے لیے 1 انگلی کا اشارہ ہوگا، تثنیہ کے لیے 2 انگلیوں کا، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں کا اشارہ ہوگا۔ غائب کے لیے ہم دائیں طرف کا اشارہ کریں گے مذکر کے لیے، حاضر کے لیے سامنے کی جانب، اور متکلم کے لیے اپنی جانب۔ آج کے ہماری یہ اشاروں کی عملی شکل ہے۔ اور آج کا ہمارا ضمیر منفصل صرف مذکر کے لیے ہم پڑھیں گے، ضمیر منفصل مذکر کے لیے۔ اس میں شروع میں جو ریڈ کلر سے ہیں یہ غائب ہے، 3rd پرسن۔ یلو کلر میں جو نظر آ رہے ہیں یہ 2nd پرسن ہے، حاضر۔ اور گرین کلر میں متکلم ہے، یعنی کہ ہماری خود ذات۔ تو جس طرح میں اشارہ کر کے پڑھوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے، دہرائیں گے میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ سبق کے دوران چونکہ مائک کو کھلا رکھنا ضروری ہے، اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کھول لیجئے گا مائک، تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے یا پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ لوگ صحیح طور پہ اس کو پک کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی مائک کے آپشن کو اوپن کر کے پھر اس کو ساتھ ساتھ دہرائیے گا۔ جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح بولیے گا بھی، جس طرح اشارہ کروں گا اس طرح اشارہ بھی کریں گے ہم۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحن، نحن، ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم،
أنتم अना أنا नहनो। نحن अब ये हमने इसको अरबी में पढ़ा है, अब इसी का तर्जमा हम पढ़ेंगे इशारों के साथ। वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। आप सब मर्द। मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। हम सब मर्द। दोबारा, वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। आप सब मर्द। मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। हम सब मर्द। अब मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप लोग इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। अंता एक आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द। अना मैं एक मर्द, नहनो। हम सब मर्द। अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगा, आप लोग अरबी में इसको पढ़ेंगे। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द, अंतुम, आप सब मर्द। अना, नहीं, मैंने उसी को रिपीट किया। आप सब मर्द, अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनो, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द। अना मैं एक मर्द, नहनो। हम सब मर्द। अब ये जो ज़मीर है, ज़मीर मुनफसिल, इसके ये 8 सीगे हैं। जिस हमने शुरू में बात की थी, हर ज़मीर के 8 सीगे होंगे, तो ये मुज़क्कर के 8 सीगे हैं। ये 8 लफ्ज़ कुरान पाक में 4753 दफ़ा हैं। यानी अगर आज के सबक को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं और आज का सबक हमें अच्छी तरह आ जाता है, तो हमने गोया कुरान पाक के 4753 अल्फाज को सीख लिया है। आप रोज़मर्रा की तिलावत के अंदर, रोज़मर्रा के जब भी कुरान पाक को आप पढ़ेंगे, तो आपको ये अल्फाज जा बजा जगह बजगह नजर आएंगे, वहाँ आप बआसानी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। 4753 मरतबा कुरान पाक में आएंगे ये सारा 8 लफ्ज़। अच्छा, अब आपसे गुजारिश है कि आप आपस में डिस्कशन ना कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ सब में आ रही होती है। अब यहाँ पर कुरान पाक की आयत सूरह हशर की आयत नंबर 22 आपके सामने है। यहाँ पे हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, यहाँ पे हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो एक। हम अल्लाह की ज़ात आली के लिए हमेशा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे वो एक। अब इस पूरी आयत में 3 जगह पर हुआ का लफ्ज़ आ रहा है, तो इन तीनों जगह पे हमें समझ में आ रहा है कि हुआ का यहाँ तर्जुमा क्या है। वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वही गैब का जानने वाला है, वही हर जगह हाजिर है, हमें देख रहा है, और वही रहमान है और वही रहीम है। और इसी तरह हुम वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, सूरह मरियम की आयत नंबर 39 है कि वो लोग जो गफलत में है, वो सब लोग, और वो ईमान नहीं लाते, और वो सब लोग ईमान नहीं लाते। इसी तरह ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता, ना खिलाफ करेंगे इसके हम और ना ही आप। अब यहाँ पर भी तमरीन हो रही है हर एक लफ्ज़ की। हुवा रहमानुर रहीम, वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है। इसको अगर हम दोबारा दोहरा लें, हुआ हुआ, हुमा हुमा, हुम हुम, हुआ हुमा, हम,
हुमा 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 हुम हुमा हुम अंत अंत अंतुमा अंतुमा अंतुम 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 अना 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 नहनु नहनु हुआ हुआ हुमा हुमा हुम हुमा हुम अंत अंत अंतुमा अंतुमा अंतुम 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 अना 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 नहनु। अब ये इस स्लाइड में आपके सामने जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ये हर सीगे के मुतल्लिक हैं कि ये कुरान पाक में सीगा कितने डाले। तो हम जो है बतौर ज़मीर मुनफसिल के 260 मरतबा आया है और बतौर ज़मीर मुत्तसिल के हम बतौर ज़मीर मुत्तसिल के जो है 3458 मरतबा आ रहा है। ये मुख्तलिफ सीगे कुरान पाक में कितनी दफ़ा आ रहे हैं सबके मुतल्लिक अलग अलग लिखा हुआ है। बहुत ही आसान तरतीब से बहुत ही जल्दी हम चंद अल्फाज को याद कर लेने से, उनको समझ लेने से, उनको सीख लेने से कुरान पाक के अंदर बहुत से हिस्से को हम समझ सकते हैं। तो इसी ज़मीर को अगर हमें अच्छी तरह याद हो जाए, इसको याद करने का आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि इसकी स्लाइड मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि इसकी स्लाइड को देखकर हम खुद बार बार इसकी दोहराई करें और इसी तरतीब से दोहराएं। इसको दोहराने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो हम शर्माएं नहीं। शर्माने नाम का क्या मतलब है कि हम थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से इसकी दोहराई करें। दूसरी चीज़ क्या है कि हम हाथ के इशारों को पूरी कुव्वत के साथ करें। यहाँ अभी मैं आपके सामने सिर्फ कैमरे में ताकि मेरा इशारा भी आए, मेरा चेहरा भी आए, तो थोड़ा सा अपने जिस्म के साथ इशारा कर रहा हूँ, वरना सही तरीका इशारे का होता है कि पूरा हाथ खोल के इशारा किया जाए। इसी तरह सामने की जानिब भी पूरा हाथ खोल के इशारा करें और अपने जिस्म की जानिब भी। तो पूरा हाथ के खोलने से क्या होगा कि एक जोर लगता है, एक तवज्जो आती है और हम जो है उसमें सुस्ती या काहली हमारे अंदर पैदा नहीं होती। जितना हमारा इशारा ढीला होगा उतना ही देर से याद होगा और उतनी ही बात हमें सही तरह से समझ नहीं आएगी। यहाँ पे एक सवाल किया है मुत्तसिल और मुनफसिल का फ़र्क बयान कर दें। मुनफसिल कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जो अलहदा आए, साथ अटैच होकर ये जुड़ के ना आए। मैं यहाँ पे आपको दूसरी स्क्रीन, इस स्क्रीन के अंदर आप देखें, यहाँ पे जहां भी हुआ हुमा हुम या अंता अंतुमा अंतुम आ रहा है, ये सब किसी लफ्ज के साथ अटैच होके या जुड़कर नहीं आ रहा। ठीक है। मुत्तसिल कहते हैं जो बिल्कुल साथ जुड़कर आ जाए, उस लफ्ज का हिस्सा महसूस हो। जिस तरह एक और स्लाइड के अंदर एक बात आपके सामने आई थी, यहाँ पे ये देखिए कि ज़मीर हम जो है ज़मीर बतौर ज़मीर मुनफसिल के 260 मरतबा आया है और हम का लफ्ज़ ज़मीर मुत्तसिल में भी आता है और बतौर ज़मीर मुत्तसिल के ये 3458 मरतबा आया है। मसलन अलैहिम, ये अलैहिम के अंदर जो आखिर में हिम आ रही है ये ज़मीर मुत्तसिल की हम ही है। ठीक है, ये साथ जुड़कर आती है, लिखने में साथ लिख कर आती है। मुत्तसिल और मुनफसिल का ये फ़र्क होता है। कुछ साथी जो हैं बिल्कुल आखिर में हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, हम थोड़ा सा सबक को दोबारा दोहरा लेते हैं। तो हुआ साथ साथ पढ़े, हुमा वो दो मर्द, हुम, अरबी पढ़ेंगे मेरे साथ सब। हुआ हुआ हुमा हुमा हुम हुम अंता अंत अंतुमा अंतुमा अंतुम तुम अना अना नहनु। अना नहनु अना नहन। वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो सब मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप एक मर्द, आप दो आप मर्द, एक मर्द, आप दो मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, आप सब आप मर्द, सब मर्द, मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। हम सब मर्द। हुआ 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 हुमा हुमा हुम हम हुम अंता अंता अन, अंतुमा अंतुमा अंतुम 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 अना 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 नहनु। नहनु।
नहनु मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। हुआ, हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द, अंता, आप एक मर्द, अंतुमा, वो आप आप दो, एक, अंतुमा, अंतुमा, आप सब मर्द, आप दो मर्द, दो, अंतुमा है, आप दो, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप सब मर्द, अना, मैं एक मर्द, नहनु। हम सब मर्द, अब मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप लोग इसका अरबी में पढ़िएगा। वो एक मर्द, हुआ, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, हुमा, वो सब मर्द, हुम, हुम, आप एक मर्द, अंता, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, अंतुमा, आप सब मर्द, अंतुम, अंतुम, मैं एक मर्द, अना, अना, हम सब मर्द। नहनु, अब मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप लोग तर्जुमा करेंगे। हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द, अंता, आप एक आप मर्द, एक मर्द, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप आप सब सब मर्द, अना, मैं मैं एक एक मर्द, मर्द, नहनु। हम हम सब सब मर्द, मर्द। चले मैं फिर उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ, आप लोग इसकी अरबी पढ़ेंगे। वो एक मर्द, हुआ, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, हुमा, वो सब मर्द, हुम, हुम, आप एक मर्द, अंता, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, अंतुमा, आप सब मर्द, अंतुम, अंतुम, मैं एक मर्द, अना, अना, हम सब मर्द। नहनु, नहनु, जी दोबारा। वो एक मर्द, हुआ, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, हुमा, वो सब मर्द, हुम, हुम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द, अंतुम, अंतुम, मैं एक मर्द, अना, अना, हम सब मर्द। नहनु, आखिर में मैं सीगे मुख्तलिफ बोलूंगा, एक तरतीब और सीक्वेंस से नहीं बोलूंगा, सिर्फ उर्दू तर्जमा बोलूंगा, आप इसकी अरबी बोलिएगा। वो दो मर्द, हुमा, अंतुमा, वो दो मर्द, हुमा, हुमा, आप सब मर्द, अंतुम, अंतुम, मैं एक मर्द, अना, वो एक मर्द, हुआ, हुआ, हम सब मर्द, नहनु, नहनु, वो सब मर्द, हुम, हुम, आप सब मर्द, अंतुम, अंतुम, वो एक मर्द, हुआ, आप दो मर्द, अंतुमा, अंतुमा, मैं एक मर्द। अना, अना, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ये जो स्लाइड है बुनियादी सबक की, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसको मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर तन्हाई में बैठ के चाहे ख़ुद से आप दोहराएं। जितना ज़्यादा दोहराएंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतनी ही ये पुख्ता हो जाएगी। और इतनी आवाज़ से ज़रूर करें कि आपके कानों को सुनाई दे, ताकि देख कर, बोल कर, सुन कर और हाथ के इशारों से और दिमाग से समझते हुए हम इसका तर्जुमा भी बार बार दोहराएं और इसके अरबी वर्ड्स को, अरबी गर्दान को भी याद करें। बाकी जो इशारों की स्लाइड्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि इशारों के समझने में, दोबारा उसको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।